My namaskars and greetings to all the participants of this very important webinar on Swami Vivekananda on his birth anniversary. I thank the law faculty or law school of the Delhi University for inviting me to give this address today. I would have loved to have it in a physical format, in-person format, but nevertheless the situation is such that we could only use this technology to interact with each other. Nevertheless, it's important that we keep remembering this great personality, not just Swami Vivekananda alone, but all the great personalities who have shaped our country, its present, and of course, those who will play an important role in shaping our future. We are into the 75th year of our independence. आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है. तो हमारे आजादी को शेप करने वाले, those who were physically or in person or personally involved in the freedom struggle, but also many more who played a very crucial role inspiring millions and millions to plunge into that freedom movement. All those great persons should be remembered by the grateful nation, at least in this year of Amrit Mahotsav. I compliment the faculty, the leaders of this institution for taking initiative in hosting this event. भारत के दो परिचय होते हैं. One introduction about India is that we are a very ancient nation, a nation with close to more than 5 millennia history, great civilization, very ancient civilization, etc. A nation of great antiquity. एक परिचय ये होता है. There is a very opposite introduction about India also, and that is that India is a nation of youngsters, a very youthful nation. हमारे देश के 58% population below 35 years age का है. हालांकि आज युवा कौन है इसके ऊपर बहुत बहस चलता है. 50 साल तक भी पॉलिटिक्स में नेता युवा ही रहता है. बट अगर 30-35 इयर्स का भी एज हम लेते हैं तो भारत के 58% पीपल आर यूथफुल यंग पॉपुलेशन. So that makes India a very youthful country also. It's an ancient nation on one hand and a nation bustling with young population on the other hand. If there is any one leader who bridges these two characters of our country, characteristics of our nation, it is none other than Swami Vivekananda. A leader, a spiritual giant who represented the ancient Indian greatness before the entire world, but a leader who represented the youthfulness of this nation before this country and the countrymen. That is the reason why we chose Swami Vivekananda to represent the National Youth Day. India has many young leaders who have contributed enormously to its building and rebuilding. But of all those leaders, if a saint, if a saffron-clad sannyasi was chosen to be the epitome of youthfulness, an inspiration to the youth of this country, we can understand how he bridged these two different worlds, the world of the ancient and the world of the modern youngsters. Swami Vivekananda, the very name of him, sends a galvanizing shock of strength in our bodies. उनका नाम ही एक बिजली जैसा तेज हमारे शरीर में दौड़ाता है. I am the proudest person ever born. This was Swami Vivekananda's proclamation. I am the proudest man. But he hastens to add that my pride is not due to myself. It is not because I am a handsome person.
Vivekananda was a very handsome personality. It's not because I am a great scholar. He was a great scholar. It's not because I speak a fluent English, good English. He was, of course, a great orator. But Vivekananda says, I am proud. My pride comes from the fact that I belong to a great country, great culture, and great civilization. My pride is due to my ancestry. Today, when we remember Vivekananda, the first and foremost thing that we must remember is the pride he has held in India's age-old civilizational historical past. It is fashionable to equate modernity with cutting off from our past. भूतकाल का तिरस्कार ही आधुनिकता समझना आज के दिन में फैशन माना जाता है। पर विवेकानंद जी का एक बड़ा संदेश हम सबको है कि भूतकाल को तिरस्कार मत करो, डोंट रिजेक्ट इट, फील प्राउड अबाउट इट। विवेकानंद जी के 3 बड़े संदेश को हम सब युवा लोग हमेशा याद रखना चाहिए। The first and foremost was this, the pride in the past. But when I say that, I must also admit that past में कोई mistakes नहीं हुआ हो या past में कोई याद रखने लायक चीज कुछ नहीं है, ये बात को मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। There are a few things in the past that were mistakes, that were wrongs, but even remembering them is important in order to ensure that we don't repeat those mistakes. But those great aspects of your past must always be respected, cherished, remembered in our journey towards future. So pride in the past is one quality that the youth of the country should imbibe. But then, that's not enough. You cannot always live in the past. That's why Vivekananda said, the second important quality that we should imbibe is the pain about the present. वर्तमान की पीड़ा चाहिए। वर्तमान की पीड़ा का अर्थ होता है कि जो हमारे चारों तरफ जो दृश्य देखने को मिलता है, वो देखकर मन में भावना होनी चाहिए। यू शुड फील। चारों ओर कई चीजें हमारी घटते रहती है। वर्तमान में हमारे सामने एक दृश्य खड़ा है, उसमें कई अच्छी चीजें हैं, उसका आनंद तो लेंगे ही। जब आर्थिक उन्नति होती है, अच्छा लगता है। बुलेट ट्रेन आता है, अच्छा लगता है। पर क्या साथ ही साथ चारों ओर जो कुछ चीजें इस देश के सामान्य लोगों के साथ हो रहे हैं, उसमें जो पीड़ा देने वाली चीज होते हैं, उससे आपको पीड़ा होती है क्या? विवेकानंद ने तो स्ट्रेट एक प्रश्न पूछा है सब युवाओं को इस वर्तमान के संदर्भ में, अबाउट द प्रेजेंट। डू यू फील? डू यू फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट that millions are starving today and millions have been starving for ages? आपके दिल के अंदर से ये पीड़ा आपको होती है क्या कि जिस देश को अन्नपूर्णा कहते हैं, रत्नगर्भा कहते हैं, उस देश में करोड़ों लोग आज भी गरीबी का जीवन जीते हैं? हाँ, ये अलग बात है। जब विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी, उस समय इस देश की गरीबी की का चित्र कुछ अलग था। आज 70-75 साल के आजादी के बाद चित्र में काफी अंतर आया है, पर आज भी देश के अंदर, समाज के अंदर इनइक्वालिटीज, असमानताएं भरी पड़ी है। आज भी करोड़ों लोग एक गरीबी का जीवन इस देश में जीते हैं, अज्ञान का जीवन जीते हैं, जाति पंथ संप्रदाय के शिकार होते हैं, संघर्ष होता है,
आज भी हम जाति से लड़ते हैं। आज देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव का एक ही आधार बनता है, जाति। समाज को तोड़ने वाले सारे चीज इस देश के राजनीति के आधार बन जाते हैं। जब वो दृश्य देखते हैं तो क्या मन में पीड़ा होता है? प्रश्न उन घटनाओं का नहीं है, घटना तो होता है। आप सड़क पे जाते हो, सामने तो गरीब दिखता है, कार में जा रहे हो तो शीशा ऊपर कर देते हो। ये देश कब सुधरेगा इतना बोले हुए, पर उससे ज्यादा कभी पीड़ा भी होती है क्या कि यार मेरे देश के लोग आज भी क्यों चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर है? क्यों इस देश में आज भी गरीबी है? क्यों इस देश में आज भी इस प्रकार अज्ञान है? क्यों लोग लड़ते हैं? क्यों इस देश में विभाजन है? ये पीड़ा होती है क्या? डू यू फील? फील यानी ऐसा वैसा फील नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। सर मैं देखता हूं तो अच्छा लेख लिखता हूं, ऐसा नहीं। डज इट मेक यू रेस्टलेस? डज इट मेक यू स्लीपलेस? आपको रात को नींद नहीं आता? Has it entered into your blood, coursing through your veins, become almost consonant with your heartbeat? आपका दिल जैसे धड़कता है, ऐसे इस देश की दुस्थिति को देखकर आपका दिल में वो पीड़ा भी धड़कती है क्या? Have you become almost mad with that one idea of the misery of your people? Forgot about your name, your fame, your money, your prosperity. Have you become mad? That intense feeling about the present. वर्तमान की उस प्रकार की अत्यंत पीड़ा आज युवाओं को चाहिए। तो भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा, पर साथ ही साथ मेरे पास पीड़ा भी है, गौरव भी है। एक किताब लिखूंगा, क्या मुझे तो आज अवसर मिल गया आपको भाषण देने का, इस प्रकार आप हमको अवसर दो, मैं भी 1 घंटा भाषण मारूंगा, वो नहीं। इस पीड़ा के साथ साथ आपके सामने क्या भविष्य का कोई स्वप्न है? डू यू हैव एनी विजन फॉर द फ्यूचर? द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड टुडे इज वी नीड अ विजन फॉर द फ्यूचर। आज युवाओं को वैसे तो अपने वैयक्तिक जीवन का तो स्वप्न होता है, होना भी चाहिए। हम कहां पहुंचना है व्यक्तिगत जीवन में, इसका एक स्वप्न लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो स्वप्न भी भव्य होना चाहिए। Those who cannot even dream about their future can never achieve anything. First of all, dream what you want to become. Then one day, probably you will reach there or halfway there. But also, do you dream about your nation, your society? Where should it reach? समाज, देश के भविष्य का भी स्वप्न लेकर चलना होगा। वैयक्तिक स्वप्न जितना महत्व का होता है, उतना ही महत्व ये राष्ट्र के नाते इस देश को कहां पहुंचाना है, वो स्वप्न का भी उतना ही महत्व होता है। बल्कि मैं कहता हूं उसका महत्व और ज्यादा होता है। इसी कार्यक्रम में अगर मैं नहीं हूं, पर कोई अमेरिका का, मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर समझने के लिए ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका का कोई व्हाइट आदमी को लाके आपके प्रोफेसर गुंजन जी खड़ा कर देते हैं, तो शायद मेरे से ज्यादा अटेंशन से आप उनका सुनते हैं। पूरा सुनने के बाद आप पूछेंगे क्या है ये महापुरुष, क्या है अमेरिका में, तो बोला जाता है कि ये तो कोई शिकागो शहर में ही ओन्स बिग लॉन्ड्री। गौरव से सुनते हैं क्या भारत का कोई सामान्य धोबी को आप लाके भाषण दिला सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में? अमेरिका का लॉन्ड्री ओनर है ना, हमारा यहाँ धोबी वही तो है ना, इज द धोबी ऑफ अमेरिका। बट बिकॉज अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका's धोबी also gets respect all over the world. If we individually become great, we get respect. But if nations become great, the last man of the nation and also becomes great. So our effort should be, हमारा प्रयास
स्वयं को महान बनाना जरूर है, बनना चाहिए, हर व्यक्ति एक उपलब्धि वाला व्यक्ति बनना चाहिए जीवन में, पर साथ साथ राष्ट्र को, देश को भी कैसे हम एक सामर्थ्य संपन्न, कैसे एक महत्वपूर्ण सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, गौरवशाली राष्ट्र बनाएंगे, इसका स्वप्न लेकर चलना पड़ेगा। तो स्वामी जी के जो 3 संदेश है, भूतकाल का गौरव रखो, डोंट कट ऑफ फ्रॉम द रूट्स ऑफ योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर, योर नेशन। वर्तमान की पीड़ा रखो, आनंद मौज मस्ती में मत रहो, पीड़ा रखो, और भविष्य का स्वप्न लेकर चलो। यह संदेश लेकर आज के इस देश के युवा को आगे बढ़ना होगा। भारत का युवा वैसे तो बहुत ही सामर्थ्य संपन्न है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक शोध हुआ, उसमें प्रस्तावित हुआ कि IQ ऑफ एन एवरेज इंडियन, सामान्य भारतीय का जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट इज व्हाट? इट्स जस्ट अबाउट आवर बुद्धिमत्ता, हमारी बुद्धि। IQ of an average Indian is higher than the IQ of any other person of any other race. बुद्धि है, सामर्थ्य है, इसका प्रूफ भी है दुनिया में। आज एक व्हाट्सएप घूमता है दुनिया भर में, अमेरिका के टॉप 10 कॉर्पोरेट्स में हेड के स्थान पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के स्थान पर अब इंडियन दिखते हैं। नासा जैसे संगठन में, अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नंबर पे पहुंच जाते हैं। नंबर 1 इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अमेरिका के बॉर्न सिटीजन नहीं है। पर एक राष्ट्र के नाते हम उस ऊंचाई तक अभी पहुंचे हैं क्या? अभी पहुंचना बाकी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ना होगा। बढ़ना है तो उसका जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, हमें स्वामी जी के संदेश, स्वामी जी के विचारों से लेना चाहिए। आज इस देश के लिए ऐसे युवा चाहिए जो those who are rooted in the India's ethos, those who have pride about their Indianness का political identity नहीं कह रहा हूं, हजारों वर्षों का इस देश का महान सभ्यता, संस्कृति का हम भी एक प्राउड पार्टनर है। जैसे विवेकानंद ने कहा ना, आई एम द प्राउडेस्ट पर्सन बिकॉज आई बिलोंग टू ए ग्रेट एंसेस्ट्री। पर साथ ही साथ एकदम भविष्य को लेकर एक आधुनिक से आधुनिक सोचने वाले युवा चाहिए। भारत को बहुत जल्दी हम इस देश के तमाम समस्याओं से बाहर लाना पड़ेगा। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल बाद भी आज भी इस देश के पर कैपिटा इनकम में हम पिछड़े हुए हैं। ये अलग बात है, पॉलिटिक्स में हमेशा अच्छे डेटा दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि सच भी है कि टुडे वी आर द वर्ल्ड्स 5th और 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी में हम 152nd पोजीशन पर है। वार्षिक आम आदमी की जो वार्षिक आमदनी है उसकी तुलना में 152nd है हम। वो आज निर्माण होना है। उसके लिए भारत को एक आधुनिक विकसित देश ग्रास रूट्स पे बनाना पड़ेगा। उसके लिए हर युवा को आज सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि ग्रास रूट्स में प्रॉस्पेरिटी खड़ा करना पड़ेगा। तो उस दिशा में सोचने वाले युवा आज चाहिए। इसलिए केवल स्वप्न लेकर स्वप्नों के जीवन में दुनिया में जीना नहीं है, उस स्वप्न की दिशा में कदम बढ़ाने वाले भी चाहिए। विवेकानंद जी कहते थे, भाई इस देश में किसी को भी वो देशभक्त नहीं है ये कहना संभव नहीं है। हालांकि आजकल हम कभी कभी नेशनलिज्म का, पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट्स लेकर घूमते हैं, इसको पेट्रियट उसको पेट्रियट देते रहते हैं, बट इस देश में किसी को भी पेट्रियट नहीं है प्रूव करना संभव नहीं है। हर एक के पास प्रूफ है। अब किसी से पूछिए, भाई तुम क्या देशभक्त हो, तो जेब में से रिसीट निकालेगा, सर देखिए जब
वहां केरला में फ्लड्स आया तो मैंने तो मेरा 1 महीने का सैलरी, 1 दिन का सैलरी मैंने डोनेट किया। आप मेरे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हो? या कोई कहेगा कि वो याद है जब सुनामी आया तो हमने तो हमारे मोहल्ला में चावल इकट्ठा करके तमिलनाडु भेजे। या दिल्ली में फायर एक्सीडेंट हुआ तो 1000 घर जल गए तो उन जो घरों के जो लोग हैं उनके लिए हमने तो कंबल और खाना वगैरह इकट्ठा करके दिए हैं। आप हमारे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत में हर व्यक्ति को अपना पेट्रियटिज्म प्रूव करने के लिए कोई ना कोई प्रमाण मिलेगा। बट समस्या ये है कि वो महापुरुष को देशभक्त बनना है तो या तो कहीं बाढ़ आना पड़ेगा, या तो कहीं सुनामी आना पड़ेगा, या कहीं घर जल जाना पड़ेगा, तब देशभक्त है। Which is called part-time patriotism. देश part-time patriotism से नहीं बनते हैं। देश पेट्रियटिज्म जिस देश के समाज के युवाओं में एक सहज जीवन का एक लक्षण होता है, सहज लक्षण होता है, उस प्रकार के समाज में ही, उस प्रकार के युवाओं के साथ द्वारा ही राष्ट्रों का निर्माण होता है, देशों का निर्माण होता है। हमारे साथ ही आजादी का जीवन शुरू करने वाले हमारे अन्य देशों का जीवन देखिए। इजराइल, हम 1947 में आजाद हुए तो इजराइल ने 1948 में आजादी प्राप्त की है। जापान 1945 में पूरा धराशाही हो गई है, हमारे साथ ही जीवन शुरू किया है लगभग। और चीन भले ही सही उदाहरण नहीं हमारे साथ, क्योंकि चीन का एक विशेष प्रकार का राजनीतिक तंत्र है जो अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी हमारे साथ ही तो प्रस्थान शुरू किया। आज वो देश कहां पहुंच गए? हम क्यों इस प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं? इसके एक कारण है, ये भी मैं विवेकानंद के ही बातों में कहता हूं। एक बार विवेकानंद जी अपने जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की बात गुंजन जी ने कहा था, वो भाषण के बाद 1893 के भाषण के बाद वे लंदन गए थे 1896 में। तो लंदन में एक दिन भारत की महान संस्कृति, सभ्यता, हमारे वेद पुराण इतिहासों के बारे में बड़ा भाषण, उनका सिलसिला श्रृंखला चलता था। तो एक दिन एक स्थानीय व्यक्ति ने खड़ा होकर एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी आप तो कह रहे हैं कि आपका धर्म इतना महान है, संस्कृति इतना महान है, आपके पूर्वज इतने महान लोग थे, तो आपके सारे इतने महान है तो आपका देश ऐसा क्यों है? आप क्यों गरीबी में हो? आप क्यों इसमें हो, दूसरों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में क्यों हो? तो विवेकानंद एक क्षण मौन रह गए। फिर विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, देखो मित्र, what you say is very right. My culture, my civilization, my value system, my religion, they're very great. But क्या करूं? My people have become lethargic. मेरे लोग हैं ना, ये लेथार्जिक बन गए हैं, आलसी बन गए हैं, आत्म केंद्रित बन गए हैं। मुझे इनको इस आत्म केंद्रित आलसी जीवन से बाहर लाना होगा, तभी जाकर इस देश का वो जो पुनरुत्थान है, रिजुवनेशन है, वो संभव होगा। तो हमें इस आलसी आत्म केंद्रित जीवन से बाहर आने का जो प्रेरणा है वो स्वामी जी से लेना होगा। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद 4 साल अमेरिका में थे, तो भाषण, भारत की संस्कृति, इसका धर्म, इसके बारे में बड़ा भाषण दिए थे। पर जब वो भारत में वापस आए या वहां से भारत के लोगों को संबोधित कभी करते थे तो वो ये भाषण नहीं देते थे। उल्टा उनका भाषण भारत के लोगों को हमेशा कोसने का, हमेशा डांटने का, हमेशा उनके दिमाग ठीक करने का होता था। उन्होंने तो यहां तक एक समाज के एक वर्ग के लोगों को बोल दिया कि मैं सोचता हूं कि तुम लोग पागल है, भारत के लोगों के बारे में ये पागल खाना लगता है, ऐसा बोल दिया। जहां जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर लोगों को मंदिर में प्रवेश को भी रोका जा रहा था, तो उस समाज को देखकर विवेकानंद, he did not mince his words, he said it's like a mental asylum, lunatic asylum.
रास्ते में जब टोक्यो में रुके थे, अमेरिका जाते समय शिप में जा रहे थे तो टोक्यो में रुके थे, तो टोक्यो का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने के बाद पत्र लिखे भारत को, भारत के युवाओं को कहा था, अरे तुम लोग कहां जी रहे हो, इंडस्ट्रियलाइज करो देश को, आधुनिक बनो, बी मॉडर्न, बी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। जब भारत आए थे तो कोलंबो में जहाज उतरे थे, कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा उत्तराखंड में, वहां तक उनका एक यात्रा चली। उस यात्रा में उन्होंने हर जगह भाषण दिया, तो हर भाषण वो यही इसी बात से शुरू करते थे, ओ माय डियर यंग मेन एंड वीमेन ऑफ दिस कंट्री, ऑल माय होप्स लाई ऑन यू। आप मेरे सारे आशाओं के केंद्र है, ओ देश के युवाओं, मेरी सारी आशा आपके ऊपर है। क्या आशा थी वो? भाई इस देश को आधुनिक बनाना है, इस देश को विकसित बनाना है, इस देश को संगठित रखना है, यूनाइटेड, प्रोस्परस, स्ट्रांग, ऐसा भारत को बनाना है। विवेकानंद जी को याद करते समय दोनों चीजों को याद करना है कि इस देश की जो प्राचीन परंपरा, सभ्यता, उसके अंदर के जो महान चीज, जिनका एक परिचय विश्व को उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिया था, वो एक बहुत बड़ा पक्ष है, उससे हमेशा हमको गर्व लेना चाहिए। जैसा अभी प्रारंभ में कहा गया था, तोशिता या किसी ने कह रहा था कि जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण देने गए थे, पहले तो उनको भाषण देने का अनुमति ही नहीं मिला था, ये कौन आ गया करके, क्योंकि उनके पास भाषण का इन्विटेशन नहीं था। पर हार्वर्ड के एक प्रोफेसर उनके बारे में लिखते हैं कि भाई इनको परिचय मांगना, इंट्रोडक्शन मांगना, सूरज को अपना परिचय देने के लिए कहना जैसा मूर्खता है। ये ऐसे प्रकांड विद्वान है, इसको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, इनको भाषण देने दीजिए। तो जब पहली बार भाषण देते हैं तो लोग इतने मंत्रमुग्ध होते हैं कि 3-3 बार उनका भाषण होता है 10 दिन में। और उस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए गर्व करता हूं कि मैं उस प्रकार उस समाज से आता हूं जहां हम केवल टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुआ था 1893 में, उसका केंद्र विषय था, सेंट्रल थीम था टॉलरेंस। हम सभी एक दूसरे को टॉलरेट करना है। तो विवेकानंद ने कहा कि हम टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस में एरोगेंस होता है। मैं राइट हूं, तुम खराब हो, पर तुमको मेरे साथ बैठने देता हूं, दैट इज टॉलरेंस। हम टॉलरेंस वाले लोग नहीं है, हम रेस्पेक्ट वाले लोग हैं, एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। हम सबको समान आदर करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, सभी विभिन्न पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, सबको हम सम्मान करते हैं। हम रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। और आगे जाकर एक बार वो कहते हैं, हमारे यहाँ ये डाइवर्सिटी जो है, इसका हम टॉलरेंस नहीं हम कहते हैं, केवल एक्सेप्टेंस में भी नहीं रुकते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसका आनंद मचाते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। यह भारतीय संस्कृति का महानता है। इस महानता को स्वामी जी ने जो उजागर किया, उससे हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। इस महानता को कायम भी रखना चाहिए, इस डाइवर्सिटी का सम्मान होना चाहिए। आज जब देखता हूं कि एक दूसरे को हेट भी हम करने लगते हैं, रिलीजन के नाम पर हेट होता है आज के दिन में, के नाम पर हेट नहीं होता हो, पर राजनीति तो होती है। हमें हमारे इस सारे विविधताओं के बीच की जो एकता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका सौंदर्य का आनंद मचाने का, मनाने का जो हमारा इस देश का स्वभाव है, उसका गर्व हमेशा रखना चाहिए। पर याद रखना, विवेकानंद जी का उतना ही महत्वपूर्ण संदेश है, आधुनिक भारत को बनाना है। We have to build a modern India, strong India. That is what Swami Vivekananda's central theme was. नव्य भारत, भव्य भारत बनाना है। आज विवेकानंद जी करोड़ों लोगों को 160 साल बाद भी प्रेरणा के केंद्र है। लगभग 160 साल होने को है उनका जन्म होकर। देश के आजादी के आंदोलन में कई लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं जीवन में विवेकानंद जी को देखा नहीं था, तो
क्योंकि विवेकानंद जी की मृत्यु जल्दी हो गई। 1902 में विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 39। फिर गांधी जी कहते थे कि मैं जब उनका विचार पढ़ता हूं तो मेरे अंदर की देशभक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है, इट ग्रोस मेनी फोल्ड। लाखों ऐसे नेताओं को, बड़े लोगों को प्रेरणा विवेकानंद जी ने दिया था। उस प्रकार की प्रेरणा हम सबको लेना होगा। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद जी के लिए एक बात उन्होंने कहा था जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। टैगोर ने कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ना होगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तो एक नई ऊर्जा, नया विजन और नया संकल्प हम सबको प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ आप सबको और आपके प्रोफेसर्स को मुझे इस अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।